Hello friends, I am your success coach, Dr. Gaurav Seth here. The Management Sutra for the day. Your positive action combined with positive thinking results into success. Yes, it is always said that you should think positive, but only thinking positive is not important. You should do positive actions. You should start taking actions in the positive direction. That will lead you to success. Means think positive, act positive, and be successful. Well, the topic for discussion today is averages. If I talk about this topic, primarily it seems very easy to solve the questions of this topic. But today I am going to discuss about few basic concepts of this topic. As we all know, what is average? The formula for average is sum of observation divided by number of observation. A very simple formula. But despite of using this formula, there are few simpler approaches towards this topic. Let us first understand the basic nature of the basic concept of averages. एवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बंटवारा, बराबर बंटवारा. इसीलिए व्हेन आई टॉक अबाउट एवरेजेस, तो एवरेजेस में नंबर दो वैल्यूज लेते हैं. एक ओरिजिनल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, और सेकंड it takes average equal values. Like say there are 5 brothers. First is earning 6,000 per month, second 8,000, third 10,000, fourth 12,000, fifth brother is earning 14,000 per month. That means that they have individual earnings. These are their individual values. These are the individual values. Now, if I talk about average of these 5 numbers, it will be 10,000. That means these 5 numbers take 2 values, average values which are equal This example can be better understood like that if in a family there are 5 brothers, one earning 6,000, second earning 8,000, third earning 10,000, fourth earning 12,000 and fifth earning 14,000. अगर ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जो भी अर्न करेंगे हम उसको बराबर एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इक्वली. हेंस द शेयर ऑफ ईच ब्रदर विल बी 10,000 irrespective of their earnings. If irrespective of their earnings their share is 10,000 per head, this is their average value, average equal value, and the individual values is 6, 8, 10, 12 and 14,000s. Now, if I talk about एवरेज में हमेशा ये जो इक्वल वैल्यू है इसमें कभी भी डेविएशन पॉसिबल नहीं है. अगर इनमें से किसी भी एक वैल्यू में एक्सेस या डेफिसिट हुआ तो एवरेज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना. लेट अस हैव एग्जांपल थ्रू सम क्वेश्चंस. देयर आर फ्यू बेसिक पैटर्न्स इन एवरेजेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट बेसिक पैटर्न, the first basic pattern is based on arithmetic progression, AP. Now, if the numbers are such that as if they are in AP, that is they have equal difference, like जो अभी मैंने example discuss किया था 6, 8, 10, 12 and 14. There is a very easy way to find this average.
In such case, where the numbers follow an arithmetic progression, the average lies at mid value. If n is odd, n is odd. Don't get confused, these numbers are even, but as there are 5 such numbers, how many numbers are there in counting? 5 numbers. Therefore, in this 5 numbers, as n is odd, that means that average will lie at central position. That is the average of these 5 numbers, this is 10. If I say there are 6 numbers, if there are 6 numbers, we will say n is even. These are the 6 numbers, 3, 4, 5 and 6. This is the condition when n is even. N is even. Now, where will the average lie? Average will lie between middle 2 values. Average will lie between middle 2 values. Therefore, the average here will be 11. Average here will be equal to 11. It lies just exactly between middle 2 values. Now, averages. Let us have a look over averages by help of different questions. Find the average of first 20 multiples of 7. Find the average of first 20 multiples of 7. Now, how to find the average of first 20 multiples of 7? A very simple approach. You need not to write those 20 multiples. You need not to apply arithmetic progression. Just as n here is 20. A table of 7, that means tables always follow geometric progression. If it is n is equal to 20, there are total 20 numbers, the average will lie between middle 2. Average will lie here. Middle 2 split 20 numbers into 2 parts. 10th number in the table of 7 is 70. 11th number will be 77. Splitting 20 into 2 parts. 10 this side, 10 onto this side. That is 70 and 77. The average in between will be 73.5. Average क्या होगा यहाँ पर? Average होगा 73.5. 20 नंबर्स हैं, हमें पता है कि मल्टीपल्स हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी सीरीज है. जस्ट 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, आप विद इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं. द आंसर इज 73.5. The average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the largest of these. Another question. Average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the largest of these. अब एक अप्रोच इसमें यह हो सकता था कि हम पहला नंबर लेते हैं x, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x plus 2, third number x plus 4 and fourth number x plus 6. But we will not follow this approach. We will follow a simpler approach. The average of 4 consecutive even numbers is 27. 4 डैश बना दीजिए. Consecutive even number है, मतलब ये फॉलो करते हैं वापस से AP पैटर्न, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं ना. नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस है. 4 नंबर हैं अगर ये AP सीरीज के, तो उनका एवरेज कहां आना चाहिए? यहां पर मिडिल 2 के बीच में. So this value is 27. ये वैल्यू है आपकी 27. ये इधर और इधर इन दोनों के बीच में 27 आया है, मतलब ये वाला नंबर 28 है. और मुझे लार्जेस्ट निकालना है, इससे और 2 ज्यादा, 30. आंसर है 30.
दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच. जस्ट लेट मी रिपीट, 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए 4 डैश बनाए. एवरेज की पहले मैंने पोजीशन डिफाइन की कि एवरेज मिडिल दो के बीच में आएगा. पोजीशन डिफाइन करके यहां पर एवरेज की जो वैल्यू है 27 वो लिख दिया, ताकि इसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 28, और लार्जेस्ट वाला कॉर्नर मोस्ट होगा, दैट इज 30. सच ए सिंपल अप्रोच. The average of all odd numbers up to 100. All odd numbers up to 100. भाई 100 तक कितने odd numbers होते हैं? 50. 50 odd number होते हैं ना, 50 odd and 50 even. Therefore, अगर यदि 100 तक 50 odd numbers हैं, मतलब n is even. n is even मतलब एवरेज फिर कहां आएगा? मिडिल दो वैल्यूज के बीच में. मिडिल दो वैल्यूज क्या है? एवरेज मिडिल दो के बीच में आएगा. तो 50 के पहले वाला लास्ट ऑड नंबर है 49. 50 के बाद का फर्स्ट ऑड नंबर है 51, मतलब एवरेज क्या आएगा 50. एवरेज आएगा 50. यू कैन सी एवरेज के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें. आज के टॉपिक में भी मैं आगे भी अभी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगा. द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20. The average of 7 consecutive numbers is 20. The largest of these numbers is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consecutive numbers मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इनका एवरेज कहां आएगा? n इज ऑड मतलब मिडिल वैल्यू पे. इसकी वैल्यू क्या है 20. लार्जेस्ट क्या होगा 21, 22 एंड 23 इज द लार्जेस्ट नंबर. अगेन वेरी सिंपल अप्रोच. नाउ द अदर क्वेश्चन दैट करस्पॉन्ड्स टू redistribution of average or correction in average. The mean of 50 observation was 36. Mean means average. 50 numbers हैं, उनका average है 36. It was found later that in observation 48 was wrongly taken as 23. The corrected new mean is. एक observation जिसकी वैल्यू 48 थी उसकी जगह आपने 23 लिख दिया था. तो अब कुछ मत करिए, पूरा मल्टीप्लिकेशन मत करिए, सिर्फ जो करेक्शन है उसको ही रीडिस्ट्रीब्यूट करिए. करेक्शन कितना होगा? करेक्शन होगा 48 माइनस 23. करेक्शन हुआ आपका 25 का. ये 25 का करेक्शन है, इसको 50 में वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. 0.5 प्लस में, मतलब ये जो करेक्शन आया है 0.5 का, इसको ओरिजिनल एवरेज में ऐड कर दीजिए. 36 प्लस 0.5 बिकम्स 36.5. ये क्वेश्चन आप ओरली भी कर सकते हैं. 25 का करेक्शन है, 50 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक्सेस आएगा 0.5 का. 36 प्लस 0.5 बिकम्स 36.5. Few more patterns. Actually, एवरेज के क्वेश्चंस में मैं हमेशा कहता हूं कि एवरेज वैल्यू जो है उसको रुपीज में या फिर चॉकलेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए. कैसे? We will see through question number 1. The average age of 36 students in a group is 14 years. एक ग्रुप में 36 स्टूडेंट की एवरेज एज है 14 years. When teacher's age is included to it, जब इसमें हम टीचर की एज इंक्लूड करते हैं तो द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1. व्हाट इज टीचर्स एज इन ईयर? एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज एज 14 ईयर्स है. टीचर के आने पे एवरेज एज 15 ईयर्स हो जाती है, तो टीचर की एज कितनी है? मैंने आपको कहा कि इसको चॉकलेट की तरह समझिए. एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 14 चॉकलेट्स हैं. When teacher comes, she says, I have some extra chocolates.
तो टीचर क्या करेगी, उनको एक एक चॉकलेट एक्स्ट्रा दे देगी बच्चों को, है ना, तभी बच्चों के पास 15 हो गया ना एवरेज। तो अब टीचर ने 36 स्टूडेंट्स को एक एक चॉकलेट दी, मतलब टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कितनी चॉकलेट की, 36 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की। और अब टीचर क्योंकि पार्ट ऑफ ग्रुप है, तो एज आई सेड कि एवरेज में किसी के पास भी कम ज्यादा नहीं होता है, तो टीचर के पास भी अब 15 चॉकलेट्स हैं। तो टीचर ने 36 स्टूडेंट्स को एक एक चॉकलेट दी, दैट मीन्स 36 चॉकलेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड 15 टू कीप विद टीचर। कितनी चॉकलेट्स टोटल हुई टीचर के पास, 51। चॉकलेट को वापस से एज में कन्वर्ट कर दीजिए, टीचर की एज है 51 ईयर्स, टीचर की एज है 51 ईयर्स। हम इन क्वेश्चंस को चॉकलेट्स या फिर मनी के डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में इसलिए सोचते हैं एवरेज के क्वेश्चंस को, क्योंकि एज का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर हम चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन या मनी के डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में सोचें और फिर उसको ओरिजिनल एज में ट्रांसलेट कर दें, तो बिलीव मी यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Question number 2. The average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? पुराना जो क्वेश्चन था पिछला वाला, ये एडिशन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एडिशन प्रॉब्लम था, यहां पर रिप्लेसमेंट है, यहां पर रिप्लेसमेंट है। एक व्यक्ति गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया, उस वजह से ग्रुप का एवरेज 2.5 बढ़ गया 8 लोगों का। 8 लोगों का एवरेज अगर ये 2.5 से इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 2.5 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 20 kg इंक्रीज हुआ है। 20 kg कैसे इंक्रीज हुआ है, 65 के व्यक्ति का रिप्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स वेरी क्लियर कि नए व्यक्ति का वेट कितना है, 65 प्लस 20 kg दैट इज 85 kg। लेट मी रिपीट, दिस इज अ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया, टोटल वेट बढ़ा 2.5 इंटू 8 दैट इज 20 kg। 65 kg वाला गया है, 20 kg बढ़ा है, मतलब नए व्यक्ति का वेट है 85 kg। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is n. The average of 5 consecutive numbers is n. If the next 2 numbers are also included, the average will, एवरेज पे इंपैक्ट क्या आएगा अगर ये 5 consecutive numbers हैं जिनका एवरेज है n। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया 5 consecutive numbers हैं, फिर AP जैसी सीरीज है, एवरेज मिड वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, यहां पर रहेगा। नेक्स्ट 2 नंबर आपने इंक्लूड कर लिए हैं, तो एवरेज अब 4th नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, देयरफॉर एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं तो उनमें गैप 1 1 का ही रहता है, इसलिए नेक्स्ट नंबर 1 ज्यादा होगा। Few more patterns. A cricketer has a certain average for 10 innings. A cricketer has a certain average for 10 innings. In the 11th inning, he scored 108 runs, thereby increasing his average by 6 runs. His new average is, एक क्रिकेटर का 10 इनिंग्स का कोई एक पर्टिकुलर स्कोर है, 11th इनिंग में ही स्कोर्ड 108 रन्स। 11th इनिंग में उसको 108 रन बनाता है और एवरेज 6 से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उसने 6 रन्स पिछली 10 इनिंग्स का स्कोर एवरेज एनहांस करने में कंट्रीब्यूट किया। तो 108 में से 6 रन्स पर इनिंग्स, 60 रन्स उसके पिछला एवरेज बढ़ाने में चले गए। अब उसके पास कितना बचा, 48 रन्स बचे, विच इज इक्वल टू न्यू एवरेज। लेट मी रिपीट, 108 रन्स वो 11th इनिंग में बढ़ाता है और बाकी की 10 इनिंग्स का एवरेज भी 6 रन से बढ़ जाता है। एवरेज 6 रन से बढ़ जाता है, मतलब वो 10 इनिंग्स को 6 रन्स देता है,
दैट इज टोटल 60 रन तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में दे देता है, पुराना एवरेज बढ़ाने में। और अब उसके पास कितना बचता है, 48 रन बचते हैं 108 में से, जो इक्वल टू न्यू एवरेज है। वन मोर क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर्स। क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज है 16 ईयर्स। इनमें से 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 14 ईयर्स और 14 स्टूडेंट्स जो बचे हैं उनका एवरेज आपको निकालना है। अब इन क्वेश्चंस के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? एक अप्रोच है 35 इंटू 16 इज इक्वल टू 21 इंटू 14 प्लस 14 इंटू एक्स, लेकिन इसमें थोड़े से बड़े कैलकुलेशंस हैं। व्हाट आई वुड रादर सजेस्ट कि हम इसको एक शॉर्टकट अप्रोच से करें। फर्स्ट लेट अस सेट सम ग्राउंड रूल्स। जो एवरेज वैल्यू है वो आपने देखा होगा मैंने हर जगह ब्रैकेट में लिखी है। ऑलवेज एंश्योर कि एवरेज आपका ब्रैकेट में लिखा हो और नंबर बाहर लिखा हो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 35 का एवरेज है 16, 21 का एवरेज है 14। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। एक फैमिली में मान लीजिए कि 35 मेंबर्स हैं और उस दिन का खाना बनाने के लिए हर एक को 16 रुपीज पर हेड अर्न करके लाना है। मेंबर्स दो पार्ट में निकलते हैं। पहले पार्ट में 21 मेंबर्स अर्न करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पर हेड 14 रुपीज ही अर्न कर पाते हैं। वो पर हेड 14 रुपीज ही अर्न कर पाते हैं। अब कितना डेफिसिट हुआ पर हेड, 2 रुपीज का डेफिसिट हुआ ना। 16 अर्न करके लाना था, हर व्यक्ति 14 रुपीज ही अर्न करके लाया, तो डेफिसिट हुआ -2। कितने लोगों में, 21 में, मतलब टोटल डेफिसिट हुआ 42 रुपीज का। बचे हुए 14 मेंबर्स क्या करेंगे, अपने हिस्से के 16 रुपीज अर्न करेंगे, प्लस ये 42 रुपीज का लॉस भी इनको ही कवर करना है, तो इनको +42 करना पड़ेगा। अगर यहां से -42 है तो +42 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 14 में, मतलब हर एक का कितना होगा, +3 हर एक को अर्न करना पड़ेगा, 3 रुपये ज्यादा लाना पड़ेंगे। 16 + 3 इज इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 19, मतलब हर एक को 19 रुपीज अर्न करना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। यही चीज हमें इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में अप्लाई करते हैं। 35 स्टूडेंट्स, एवरेज 16 ईयर्स की एज है, इनमें से 21 की एज 14 ईयर्स है, मतलब 21 मेंबर्स का एवरेज से 2 कम है, दैट इज -42। -42 on this side will become +42 divided by 14 students, that is +3 in the age, +3 compared to average, that's it, 16 + 3 becomes 19. This is a very quick trick to solve this kind of questions. This is called as tree diagram approach. One more question. The average runs of a cricket player of 10 innings is 32 runs. एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका 10 innings का एवरेज है 32 runs. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4? एक क्रिकेटर है, उसका 10 इनिंग में 32 का स्कोर है, नेक्स्ट इनिंग में उसको कितने रन्स बनाना है ताकि एवरेज 4 से बढ़ जाए। मतलब अभी 32 है, सबका एवरेज 36 करना है, 10 इनिंग तक 36 करना है, मतलब 10 इनिंग तक 4 रन्स बढ़ाए तो 40 रन्स तो उसको किस चीज के लिए लगेंगे, एवरेज बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। 32 से 36 करना है ना, 4 इंक्रीज करना है, तो 10 इनिंग में 4 इंक्रीज करने के लिए उसको 40 रन्स तो 10 इनिंग के 4 इंक्रीज करने के लिए लगेंगे, प्लस खुद के हिस्से के 32 + 4 दैट इज 36 रन खुद के हिस्से के बनाने पड़ेंगे जितने बाकी इनिंग्स के हैं, तो टोटल कितना हो गया, 76 रन्स। वापस रिपीट करता हूं,
उसका एवरेज जो 32 था उसको 4 से इंक्रीज करना है। 4 से इंक्रीज करना है तो 10 इनिंग में पहले 4 इंक्रीज करना है। दैट मीन्स कि 40 रन्स डिस्ट्रीब्यूशन के उसको बनाने पड़ेंगे, और फिर खुद का हिस्सा जो है एवरेज में, न्यू एवरेज में, दैट इज 36, तो फिर वो 36 और बनाएगा, तो टोटल 76 रन्स बनाएगा। I hope this kind of questions they are pretty clear to you. I made a small effort to discuss few basic concepts of area of average. Average is a vast concept. That is a very important topic in terms of CAT, CMAT, all other exams. Then this, based on to this topic, it is a high weightage topic for data interpretation section also. So I would rather suggest to apply these quick tricks to speed your learning, to speed your attempt. Best of luck. Have a good day. If you have any queries, you can call or WhatsApp us at 90395 27254. Wish you a very good day. Wish you happy learning. Best of luck.